So, hello everyone. Today we'll continue our series with physics. ठीक है? We have completed biology, we have completed chemistry also. Uh, बाकी के जो भी जीएस के टॉपिक्स थे, मतलब सब्जेक्ट्स थे, history, polity, geography, we have completed. So, now at last we have physics. ठीक है? So, we'll solve last 10 years papers of physics also. तो देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस डाल रहा है कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं कहाँ से हो सकते हैं ऑल दैट ठीक है चलिए so first question is a sound wave of frequency so first of all what is given frequency is given that is 2 kilohertz which is equal to 2000 hertz fine now it has a wavelength क्या है इसका 35 centimeter which will be equal to 0.35 meter. Next is how long will it take to travel means you need to find the time. डिस्टेंस कितना दिया है उन्होंने 2.1 किलोमीटर्स फाइन सो दे आर सेइंग दैट यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस सॉरी टाइम that is required to travel a distance of 2.1 kilometers okay so what is given frequency and wavelength is given see there is a formula in your ncrt okay I can also show you in my notes also okay, there is a formula that is velocity is equal to mu into lambda. What is mu here? Frequency. Lambda is your wavelength. ठीक है? So first of all, we'll find speed or velocity. So what is your frequency? Is your 2000. Lambda is 0.35. So you can solve. ठीक है? Solve करिए इसको. So you'll be left with 700. So velocity is your 700 meter per second. Now it is in meter per second. Distance is your 2.1 kilometers. So this also you'll convert it into meters. ठीक है? So speed is equal to distance upon time. Speed क्या था अपने पास 700 थी. What is distance? Distance is your 2.1 kilometers. Into 1000 आ जाएगा आपका. Upon time निकालना है आपको. So t चला गया यहाँ से cancel out हो गया. So you'll be left with 21 upon 7 t 73. So answer would be your 3. So 3 seconds would be the answer. ठीक है? चलिए next. Now they are saying that which one of the following conservation law is a consequence of Newton's third law of motion? See, it is also mentioned in your NCRTs. It's second Newton's law of motion and third Newton law of motion is based on conservation of momentum. ठीक है? So answer would be B part. Next says that which one of the following holds true for a freely falling objects. Now this is also mentioned in your NCRT that it moves with a uniform acceleration. Uniform velocity नहीं होती. There is a change in velocity. That's why we are having the acceleration. ना? So it moves with a uniform acceleration. ठीक है? अब देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला इसमें कुछ ना कुछ आई थिंक प्रॉब्लम है या क्या है यहाँ पे कुछ इक्वेशन का प्रॉब्लम है उसकी वजह से अब पता नहीं क्या होगा इसका आंसर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट बट ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक आप क्लास 11th की है कि 12th की क्लास की एनसीईआरटी या वहां से है ये सो ये थोड़ा सा अब बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन है ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन का कुछ तो भी है तो उस वजह से आई एम नॉट श्योर व्हाट वुड बी द आंसर तो इसको हम छोड़ते हैं क्वेश्चन को ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स ठीक है अब एक वायर है उसका कितना रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस इज आर चलो ठीक है पहले कितना था आर था अब उसने बोला था दीज पार्ट्स आर देन तुमने 4 इक्वल्स पार्ट में उसको डिवाइड किया देर इज अ फॉर्मूला this is your resistance and this is your length it means that the resistance is directly proportional to length and inversely proportional to its area. It means that if your length is dividing into or is divided into 4 equal parts, it means that your resistance will also
गेट्स डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो फर्स्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि चार होंगे आपके पास, तो फर्स्ट का रेजिस्टेंस वुड बी R/4, सेकंड का विल ऑल्सो बी R/4, थर्ड का भी R/4 आ जाएगा, and fourth is also R/4. It means that now you are having four resistance. Now these four resistance you need to connect parallelly. अगर आप बताइए मेरे को, if you are connecting the resistance parallelly, then what is the equivalent resistance क्या होगा आपका? So R equivalent निकालना आपको, that is 1 upon R करेंगे या फिर R dash आइए, that is equal to 1 upon R/4 आएगा, 1 upon R/4 आएगा। So क्या इसको मैं 4 by R लिख सकती हूँ? Yes, I can write 4 by R plus 4 by R plus 4 by R plus 4 by R. 16 upon R आएगा। 1 upon R equivalent is equal to 16 by R. अब उसने बोला है that you have to find the ratio. तो R dash आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। सो अगर आपका R dash ऊपर गया तो 1/16 would be equal to R dash upon R आ जाएगा। सो आंसर वुड बी योर 1/16। 1/16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था। आपको ना फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो रहा है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो वो आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए, आप अगर आपको साइंस में थोड़ा फिजिक्स टफ लगता है तो एटलीस्ट जितने इजी इजी क्वेश्चंस हैं या फिर जो फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, वो आप अच्छे से कर लीजिए। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा, लाइक ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो, अगर नहीं आता है तो आपको बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट है। आपने बार मैग्नेट को क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर लूप थी उसके साथ आपने उसके पास लाया, जिसमें जो आपके मैग्नेट का नॉर्थ पोल था वो किसको, लूप को फेस कर रहा था, ठीक है। एंड सेम देखिए, देयर इज एन एक्सपेरिमेंट इन योर एनसीईआरटी आल्सो, जिसमें उन्होंने बताया कि जो आपका करंट होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट चलेगा, नेचर होगा। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट जो रहेगा विल बी ऑपोजिट नेचर होगा बोथ एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये तो आपका आ गया बायोलॉजी का। चलिए, नेक्स्ट इज टू ऑब्जेक्ट्स हैं एक्स एंड वाई, हैव इक्वल मास है एंड आर मूविंग विद स्पीड u and 3u respectively, their kinetic energy. So what is the formula of kinetic energy? That is equal to half mv square. उसने बोला है इसकी स्पीड u है, अगर इसकी स्पीड u है तो हम u लिख लेंगे, k y की कितने, हाफ, मास तो सेम है, सो 3u का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ m 9u का स्क्वायर। अब हम एम यू का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह के एक्स लिख सकते हैं। सो के वाई इज इक्वल टू के एक्स इंटू 9। सो आंसर वुड बी योर सी पार्ट। इजी था ये वाला क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल और बार तो सबको पता होगा, इट्स नॉट, इट्स अ यूनिट ऑफ प्रेशर। अब देखो, मीटर स्क्वायर है, यहां से भी आप डिड्यूस कर सकते थे। अब मेरे को एक बात बताइए, व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन इज अ फोर्स। व्हाट इज मीटर स्क्वायर? मींस एरिया। तो कितने एरिया पे, मतलब एक यूनिट एरिया पे तुम कितना फोर्स लगा रहे हो, तो वो क्या होगा, प्रेशर ही होगा ना। सो इजी था। सो आंसर वुड बी योर जूल पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। जब आपके घरों में या फिर कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होता है, मेरे को ये बताइए, करंट जो रहता है वो बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, शार्पली शार्पली शार्पली। नेक्स्ट इज इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, मतलब चेंज होता है, सो देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब अगर आप देखिएगा तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कोई डायरेक्ट रिलेशन आपने नहीं पढ़ा होगा, बट you might have studied this formula, that is P is equal to mv, where m is mass, v is velocity, and p is linear momentum. Up there is also one formula that is half mv square. It means that this is kinetic energy. अगर उसने बोला है कि ये दो से, चलो मैं क्या कर देती हूँ, उसको बढ़ा लेती हूँ, चेंज बोल रहा तो मैंने इंक्रीज कर दिया इसको, इट मीन्स दैट वेलोसिटी भी दो से बढ़ जाएगी। तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्या ट्वाइस ऑफ v होगा? बिल्कुल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे जो v था, अब यहाँ पे v क्या हो जाएगा, अगर ये बढ़ रहा है 2 से, तो ये वाले v की जगह हम मैं क्या लिखूंगी, ट्वाइस ऑफ v लिखूंगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m
ट्वाइस ऑफ वी का स्क्वायर। अब ट्वाइस ऑफ वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाफ, टू टू ज़ा फोर, बाहर आ गया, एम वी स्क्वायर। इट मीन्स कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स से चेंज हो जाएगी। सो आंसर वुड बी बी पार्ट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए लेंस के लिए आप वही मटेरियल यूज करोगे जो कि ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, हियर एल्यूमिनियम इज ओपेक, ओपेक है, ठीक है। और एल्यूमिनियम उन चीजों के लिए यूज होगा जहां पे आपको लाइट पास नहीं करानी। ठीक है। नो ऑप्टिकल फिनोमिना है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर। ब्लू कलर किसकी वजह से? स्कैटरिंग की वजह से होता है। देखिए आपका होता है विबग्योर, ठीक है। रेड की, अब यहाँ से कहाँ मतलब कि वॉयलेट से रेड तक जाओगे, सो रेड की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी। बट जो डेविएशन का एंगल होगा इसका मिनिमम होगा, मिनिमम डेविएशन एंगल। और सबसे ज्यादा जो आपको डेविएट कौन सी करती है? वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट करती है, इसलिए सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका ब्लू कलर होता है जो आपको दिखाई देता है। और इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है वॉयलेट की। ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ऐसे कौन सा डिवाइस है विच इज यूज फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी। जो भी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल में कौन करता है? दैट इज योर जनरेटर। एंड मोटर का काम उसका उल्टा होता है। ठीक है। एंड एम मीटर सबको पता है करंट मेजर करता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस करता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस होता है उसकी पावर हमेशा नेगेटिव में होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव में होती है। सो ये तो कैंसिल हो गया पहले ही। सो यू विल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस। अब उसने क्या चीज बोली है कि फोकल लेंथ। देखिए फोकल लेंथ इज गिवन दैट इज 2 मीटर। सो पावर इज ऑलवेज इक्वल टू 1/f। सो 1/2 कितना हो जाएगा? 0.5। सो आंसर वुड बी बी पार्ट। इजी था ये क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी से ही आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, वैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पे। ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं, आप देख सकते हो। देखिए जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया था ना दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। सो दिस इज योर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहता है। ठीक है। कौन सा वाला था आपका? सी, जो पावर रहता है आपका दैट इज 1/f। और एक और चीज आप याद रखिएगा, इसका जो यूनिट रहता है दैट इज डायोप्टर रहता है। पॉजिटिव होता है फॉर कॉन्वेक्स एंड नेगेटिव होता है फॉर कॉनकेव लेंस। ठीक है। बाकी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसी इमेज बनती है, कहाँ बनती है, कैसी बनती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या था आपके पास? सी, मैंने आपको बताया था स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए ना 2021 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टाइम elapsed बिटवीन व्यूइंग अ lightning flash and hearing the thunder of a cloud is 10 seconds. Means time is given that is 10 seconds. If the speed of the sound and light in air are 330 meter per second, means speed is also given 330 meter per second. अब उसने क्या बोला? How far is the storm? Storm कितनी दूर है? मीन्स हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इजी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस हमें नहीं दिया, दोनों को आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट विल बी 330, 3300 आंसर आ जाएगा। इजी। अब ये जो था ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। सो आई वुड रेकमेंड कि आप क्या करिए, अगर उसने क्या किया है वेवलेंथ पूछा है वॉयलेट लाइट का, तो हो सकता है कल को वो किसी और का भी पूछ सकता है। सो इट्स बेटर है कि आप बिफोर हैंड इसको प्रिपेयर करके चले जाओ। ठीक है। सो वॉयलेट लाइट का मैं आपको बता देती हूँ दैट इज 0.4। ओके। नेक्स्ट इज उसने बोला दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज टू कुक फूड। कुक फूड, ठीक है, कौन कौन सी होती है? पहली बात तो सारी की सारी तो नहीं होती। जो अब एक्सरे देख लो, एक्सरे देखा कभी फूड बनाने के काम आएगी? नहीं, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ओनली ओनली कि इंफ्रारेड रेडिएशन या माइक्रोवेव। देखिए माइक्रोवेव तो होता है, सबको पता ही है। नाउ कम टू इंफ्रारेड माइक्रोवेव रेडिएशंस।
ओके, सो आंसर आपका क्या आ जाएगा? अ, दोनों आ जाएगा, ठीक है। आपकी जो इंफ्रारेड होती है वो भी यूज होती है, और जो माइक्रोवेव होती है वो तो होती है, ठीक है। इंडक्शंस में यूज होती है आपकी इंफ्रारेड। ओके, इंडक्शंस वगैरह होते हैं ना, उसमें यूज होती है। चलिए, नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ से है। वेट, ये जो मैंने आपको बताया ना कि कहाँ पे बनती है इमेज, कैसी बनती है, सो ये उस पे बेस्ड है। उसने बोला है दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। कोई भी लेंस उसके 10 सेंटीमीटर के मतलब रखी हुई है इन फ्रंट। द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर रियल एंड इन्वर्टेड है, इसका मतलब क्या है कि कौन सा लेंस नहीं हो सकता है? इट मीन्स कॉनकेव लेंस नहीं हो सकता है। चलो, ये भी इन्होंने नहीं किया। इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज अ ऑब्जेक्ट, उसने बोला है सेम साइज की बन रही है। अब सेम साइज की कहाँ पे बनती है? अगर तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखते हो, सी पे रखते हो, तो ही तुम्हारा क्या बनता है? या फोकस जो तुम्हारा टू रहता है उस पे रखोगे तो ही तुम्हारी सेम साइज की आएगी। अब उसने बोला व्हाट इज द फोकल लेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होगा? कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग? इसमें इतना पता चल गया कि डाइवर्जिंग नहीं होने वाला, कन्वर्जिंग ही होगा, बिकॉज इट्स अ रियल एंड इनवर्टेड और सेम साइज का बन रहा है। चलो ठीक है। अब उसने क्या बोला है? फोकल लेंथ निकालनी है। अगर सेम साइज के, इट मीन्स दैट तुमने सी पे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकस टू पे रखा हुआ है। अगर फोकस टू पे तुम्हारा इतना डिस्टेंस है, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? हाफ होगा उसका। फोकस क्या हो जाएगा आपका? जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका हाफ हो जाता है। सो फोकस विल बी इक्वल टू 10/2, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर कन्वर्जन। आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू शॉर्ट साइटेड पर्सन। शॉर्ट साइटेड क्या होता है? जो मायोपिक होता है, ठीक है। मतलब उसको पास वाला तो दिख रहा है पर दूर वाला नहीं दिख रहा है। सो शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज द नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड। नहीं, नियर ऑब्जेक्ट्स उसको दिख रहे, तो ये तो गलत हो गया। नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है, ये हो सकता है। नियर ऑब्जेक्ट ब्लर, ये भी गलत हो गया। सो इन दोनों में से आंसर होगा। अब उसने बोला है कि वो कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आपको हाइपोमेट्रोपिया है, इट मीन्स दैट if you are if you can see the distant objects clearly, it means that you are facing the hypermetropia, because you are not able to see the nearby objects clearly. So it can be corrected by the convex lens. ठीक है, और convex lens का पावर क्या रहता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है। ओके, चलिए, सो आंसर वुड बी योर बी पार्ट। नेक्स्ट इज व्हेन अ व्हाइट लाइट बीम इज मेड टू फॉलो नो होलो प्रिज्म, तो इट ब्रेक्स हो जाती है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कि डेविएट मतलब कितना वो फैल रहा है, कितना डेविएट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, दैट इज योर वॉयलेट कलर। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा है जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है? ऑब्वियसली इजी है, जुपिटर। सो द 21st क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो? दैट इलेक्ट्रिक करंट इज 1.5 एम्पियर है, ठीक है। Time is your 10 milliseconds, which is equal to 10 upon 1000 seconds. ठीक है, that will be equal to 0.01. ओके, ये आ जाएगा आपका सेकेंड्स में, ठीक है। अब Q हमें निकालना है। देर इज अ फॉर्मूला I is equal to Q upon T, which is given. तो हमारे पास Q हमें नहीं पता है क्या है। I कितना है? 1.5, which is equal to Q हमें निकालना upon T 0.01. सो यहाँ पे गया, आपका आ जाएगा 15 अपॉन 123। सो आंसर वुड बी ए पार्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट इज इसमें से कौन सा जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स नहीं है? दैट इज न्यूक्लियर। न्यूक्लियर जो है वो रीन्यूएबल नहीं है, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू CAPF 2020। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट? उसने बोला अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई गिर रही है फ्रीली फॉलिंग, तो कौन सा करेक्ट है? उसने बोला अगर जीरो एक्सेलरेशन, इसका मतलब जीरो वेलोसिटी होगा। अगर एक्सेलरेशन इज जीरो, व्हाट डज इट मीन? कि क्या वेलोसिटी भी जीरो रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है ना। सो ये तो गलत हो गया। नाउ जीरो एक्सेलरेशन हैज नो रिलेशन विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट।
उसने बोला कि जो जीरो एक्सेलरेशन है उसका वेलोसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे होगा? नेक्स्ट इज जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट नेसेसरली मीन जीरो एक्सेलरेशन। उसने बोला कि अगर एक टाइम पे जीरो वेलोसिटी है, इसका मतलब कि जीरो एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी जीरो है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है ना कि एक इंस्टेंट पे अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, बिकॉज इट वेलोसिटी का जितना चेंज होगा उतनी एक्सेलरेशन होगा, उतना एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। हो सकता है पहले वन वेलोसिटी था, अभी जीरो हो गया, तो चेंज तो हुआ ना उसमें। change with respect to change of velocity with respect to time. So it doesn't mean that if your velocity is zero, your acceleration must also be zero. So ये तो incorrect. Acceleration is constant. बिल्कुल सही। अब यही चीज मतलब जो मैंने आपको 2023 में भी क्वेश्चन आया है कि जो acceleration is uniform रहती है। So ये it is given. अगर आपने ये वाला सॉल्व किया होता तो 2023 में हेल्प हो जाता। ठीक है। इसीलिए बोलते पीवाई क्यू सॉल्व करने के लिए, बिकॉज आप जितने बार पीवाई क्यू सॉल्व करोगे उतने बार आपको कोई ना कोई नई चीज मिलेगी। इससे आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है। थोड़ा बहुत चीजें डिड्यूस कर सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। चलिए, नाउ दे आर सेइंग दैट देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेट मी शो यू। आपके पास क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? प्रॉपर्टीज देख सकते हो। ठीक है। अब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट मीन्स दैट उसकी दो डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। सो इसीलिए पहला वाला ही इसमें से क्या है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू प्रोड्यूस बाय द सेम सोर्सेज नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है। सो नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लेमिंग्स रूल इज करेक्ट। चलिए मैं आपको बताती हूँ फ्लेमिंग रूल कहाँ गया। सी, वी हैव टू फ्लेमिंग रूल्स। ठीक है। हमारे पास होता है एक राइट हैंड थंब रूल होता है, एक लेफ्ट हैंड थंब रूल होता है। सो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर आपका जो थंब है, सी, राइट हैंड का जो थंब है वो पॉइंट करता है करंट की, मतलब करंट की डायरेक्शन में इट इज पॉइंटिंग, देन द फिंगर दैट इज रैपिंग अराउंड, ठीक है, अराउंड द कंडक्टर, जो भी कंडक्टर आपने पकड़ा हुआ है राइट हैंड में और जो जिसको आपने रैप किया हुआ है अपने राइट हैंड से, ठीक है। सो इफ योर थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द करंट, देन ये जो आपकी फिंगर रैप कर रही है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है। सो दैट इज योर राइट हैंड थंब रूल। तो ये किसकी डायरेक्शन बताएगा? फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की और करंट की। बट वहीं पे जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो ये बोलता है दैट यू नीड टू स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर। ठीक है। जो सेंटर वाली फिंगर है और फोर फिंगर है और जो थंब है आप उसको स्ट्रेच करोगे ताकि वो म्यूचुअली क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे को। इसका मतलब जो पहली फिंगर है अगर आपकी, यहाँ पे देखिए, अगर वो रिप्रेजेंट कर रही है फील्ड को, आपकी जो सेंटर वाली फिंगर है वो करंट को कर रही है, देन जो आपका ये थंब होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोशन। मोशन मींस फोर्स। किसको करेगा? मोशन या फिर फोर्स को। तो फोर्स कौन बताता है, या मोशन ऑफ एन कंडक्टर या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन एन कंडक्टर, वो कौन बताता है? आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बिल्कुल सही है। ये तो नहीं होगा, बोथ तो नहीं होंगे, हैज नथिंग टू डू विद, ये भी गलत होता है। चलिए, नेक्स्ट इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट। उसने बोला जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं क्या वो सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक होते हैं? नहीं। सिंपल हार्मोनिक होते हैं, ऐसे टू एंड फ्रो जाता है। ठीक है। टू एंड फ्रो दैट इज योर सिंपल हार्मोनिक। तो सारे के सारे जो आपके सिंपल हार्मोनिक होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। सो दिस इज राइट। उसने बोला कि जो रडार्स यूज किए जाते हैं बाय द पुलिस टू चेक द ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स, वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? दैट इज डोपलर इफेक्ट। देखिए, जब भी बात आती है अबाउट योर रडार सिस्टम ना, सो देन डोपलर इफेक्ट कम्स इनटू सिनेरियो। व्हाई? क्यों आता है? बिकॉज डोपलर इफेक्ट बोलता क्या है, डोपलर इफेक्ट किसके लिए होता है? दैट देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है विद द मूवमेंट। ठीक है। विद द मूवमेंट, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, या फिर चेंज इन द वेव्स, वेव्स में चेंज दिखता है साउंड एंड लाइट का ड्यू टू द चेंज इन मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यहाँ पे कोई एक चीज है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो ऑब्जर्व कर रहा है,
ये रडार सिस्टम होता है आपका, ठीक है। सो जब भी ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा या फिर मोशन में आएगा, सो जो भी यहाँ पे वेव्स होंगी, विद साउंड वेव्स या लाइट वेव्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल जब ये अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मतलब कि वेव्स कंप्रेस होना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी, तो उनको समझ आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सो दिस इज द डोपलर इफेक्ट। आपका रमन इफेक्ट वही है, स्कैटरिंग वाला। स्कैटरिंग होती है ना लाइट की, प्रिज्म से निकलती है। सो दैट इज योर रमन इफेक्ट। नेक्स्ट वी हैव इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है वो थर्ड न्यूटन लॉ के मोशन के इज नॉट करेक्ट। उसने बोला है फोर्स नेवर अकर सिंगली इन द नेचर। बिल्कुल सही है कि अगर मैं किसी पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पे भी तो फोर्स अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। सो बिल्कुल सही है। व्हेन द अर्थ पुल्स द स्टोन, अब ग्रेविटी है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो स्टोन है इज गेटिंग पुल्ड बाय द ग्रेविटी। वहीं पे स्टोन भी तो अर्थ पे एक्सर्ट कर रही है प्रेशर, स्टोन भी तो एक्सर्ट कर रहा है ना प्रेशर। ऑल्दो स्टोन का जो फोर्स है वो बहुत कम है, इसलिए दिखता नहीं है, बहुत कम है रिलेटेड टू द ग्रेविटेशन ऑफ द फोर्स, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, बट फोर्स तो लगा रहा है वो। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देयर इज कॉज इफेक्ट रिलेशन। अब ये देखिए ऑपोजिट ऑप्शंस है, मैंने आपको कितने बार बोला था, अगर ऑपोजिट ऑप्शंस आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहे हैं, तो उनमें से आंसर सही रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा सही है, कि कॉज इफेक्ट रिलेशन होता है या फिर नो कॉज इफेक्ट। देखिए कोई भी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, बिकॉज देखिए अगर एक स्टोन है, स्टोन क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रेविटी है और ये स्टोन है, तो आप ऐसे बोलोगे कि जो ग्रेविटी है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है और अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। बट हो सकता है ना कि स्टोन भी स्टोन एक्सर्ट कर रहा हो प्रेशर, स्टोन एक्सर्ट कर रहा हो फोर्स, एक्सर्ट कर रहा हो, ठीक है। सो इन दोनों में से कोई भी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू से कि उसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। सो देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। सो आंसर वुड बी योर सी पार्ट। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटॉन हैव सेम डी ब्रोगली, implies that अगर एक इलेक्ट्रॉन फोटॉन का सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, उसका मतलब क्या होता है, मोमेंटम मोमेंटम। सो आंसर वुड बी योर लीनियर मोमेंटम वुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज ऑयल एंड वाटर। पानी और जो ऑयल रहता है वो मिक्स नहीं होता बिकॉज ऑफ योर सरफेस टेंशन। अब उसने बोला ट्रिपल पॉइंट द सब्सटेंस को एग्जिस्टेंट। ट्रिपल पॉइंट से ही पता चल रहा है, तो आपको यहाँ से ही पता चल रहा है क्या हो सकते हैं, तीनों ही हो सकते हैं, इसलिए उसने ट्रिपल पॉइंट बोला है। सो आंसर टू बी 1 2 1 3। इजी हो गया।